Esteemed guests and dear students, good morning. Good morning, sir. As you can see, we have with us Shri Subir Sangma, Deputy SP Sir of East Garo Hills. He's here for the program, as you can see on the board, awareness campaign against ragging and other illegal activities. I, on behalf of staff East Garo Hills, heartily welcome, sir. Sir, it is so good of you that you have taken time from your busy schedule and came here to educate our children. I further invite sir for his wisdom words. Thank you, sir. Hello, our respected principal, my dear colleague OC William Nagar PS, and my dear student. Good morning to you all. Good morning, sir. To see the smiling face of all the students look very good. Rather, I remember my school days when even I used to stand in front of the school, in front of the teacher. Now I used to sing national anthem and so many things. Generally, this assembly we have to do. So I will not take much of your time. Your classes are important, and most probably your exam will be starting very shortly. Hello. Awareness campaign against ragging and other illegal activities in school campus. So, you know what is ragging? You know, na? Yes, sir. Yeah. So there is a anti-ragging law. There is a anti-ragging law, especially for the student of schools and for the colleges. So this ragging, generally, what we used to see, it used to give the mental trauma to the junior student, and as well as that may lead to the suicidal. And just now you have taken an oath. What oath have you taken? Just now you have taken an oath. One of your student has already pledged. You have taken a pledge. You said you will respect your parents, you will respect your teacher, you will respect your colleague, you will respect your co-student. These are the words you have taken, na? Is not it? Yes. Have you taken or not? I was just sitting while you are taking a pledge. That time I was just going through what are the pledges you are going to take. That time I heard. So you should have the respect to your own student, own your classmates, own your brothers. So I just want to share one practical thing. When my daughter was going to the school, Sir Principal is here, and I don't know that practice is going on in the school or not. When I just took my daughter to Loreto School in Shillong, then what happened, the principal used to engage the senior student to receive the daughters. From the gate, parents are not allowed to go and drop their children. So we have to drop only up to the gate. Then what they used to do, they used to send the senior student to receive the new school entrance school students to the classes. They used to lead to the classes. Though that kind of brotherhoodness always used to grow among the senior student and the younger student. So now I'm coming to the point. So information has been received from us, from reliable sources, that especially the senior student, backside maybe most probably the senior student, they are bullying their junior student. So I am standing in front of all the students. I am telling you with a stern word, if by chance we come to know again this kind of activities from the senior student to especially to the junior student, we are not going to leave. We are wearing an uniform. We are here to protect all the students. And don't take it lightly. It is very prevalent, especially in the mainland Delhi and other metropolitan cities. But we don't want that kind of practice should be exercised in
William Nagar, or in this JNV school. We want you all to stay as a brotherhood and to light up our district and to bring glory to your own self and to your family. So, especially the senior student, number one, regarding bullying. Number two, engaging in some other social activities, anti-social activities that we are not going to tolerate. We are very strict in implementing all those things because future lies in your hand. Future is in your hand. So you have to build your future. And nobody will stand for you. I just want to give an example. While you are riding in horse, you might have seen in a movie, while you are riding a horse, when any thing has to be climbed up, you have to give a direction to the horse. Is not it? While you are riding a horse, you have to give a direction to the horse to jump if there is some obstacles to be crossed. You have crossed one obstacles, second obstacles, and third obstacles. Then what happened? That time you fall asleep. नींद आ गया. घोड़ा चलते जा रहा है. I think you are all comfortable in Hindi also. Isn't it? घोड़ा चलते जा रहा है और एक गड्ढा को क्रॉस करना है. आप सो गया घोड़ा का ऊपर में. घोड़ा क्या करेगा? जंप करेगा कि नहीं? घोड़ा ऑटोमेटिकली जंप करेगा क्योंकि उसको आदत हो गया. कोई अगर ऑब्स्टेकल्स या कोई अगर गड्ढा को हमको क्रॉस करना है, हमको जंप करके जाना है. फर्स्ट ऑब्स्टेकल्स, व्हेन यू आर राइडिंग ए हॉर्स, यू आर गिविंग अ डायरेक्शन टू द हॉर्स टू जंप. अभी जंप करो. एक नंबर, घोड़ा ने जंप कर लिया. सेकेंड, गड्ढा आ गया, फिर आपने घोड़ा को बोला जंप करो, घोड़ा ने जंप कर लिया. 3 नंबर ऑब्स्टेकल्स आ गया, घोड़ा को आप बोला कि जंप करो, जंप कर दिया. थर्ड ऑब्स्टेकल्स के बाद आपको नींद आ गया. तो जब फोर्थ ऑब्स्टेकल्स आ गया, घोड़ा ऑटोमेटिकली जंप किया. तो आप सो रहा था, आपको क्या होगा? आप गिर जाएगा. तो घोड़ा का क्या हो गया? घोड़ा ऑलरेडी माइंडसेट है, हमको अगर कोई अगर गड्ढा मिलना है तो हमको जंप करना है. देयर इज अ माइंडसेट यू हैव टू हैव इन योर ब्रेन कि हमको जूनियर स्टूडेंट को प्यार करना है, जूनियर स्टूडेंट को हमको प्यार से इज्जत देना है, प्यार से वो लोग का साथ ये करना है. तो दैट थिंग यू हैव टू कीप ऑन योर माइंड. Those who are traveling outside, how many students from outside William Nagar? Raise your hand. How many students? Okay, you may be from the different district, you may be from the different place. आप जब स्कूल के लिए सुबह उठता है तो क्या है? You feel lazy to get up. Is not it? Are you not lazy or not? You get lazy, you feel स्कूल जाना है, ठीक है, अभी और टाइम है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, थोड़ा लेट करके जाएगा, कुछ नहीं होगा. होता है कि नहीं होता? जब आप लोग कल अगर हमको बागमारा से विलियम नगर आना है स्कूल के लिए, हमको बस पकड़ना है, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगा. किस लिए? क्योंकि हमको बस मिस कर सकता है कि नहीं? You don't sleep at night that tomorrow morning I have to go to William Nagar because my bus is at 6 o'clock. You may not have your sleep at night. लेकिन चिंता किसके लिए है? 6 बजे कब होगा, हमको बस पकड़ने के लिए जाना है. That time you will not feel that थोड़ा सोएगा, ये नहीं होगा. दिमाग में ऑलरेडी ऑटो सिग्नल देकर रखा हुआ है, कल सुबह हमको 6 बजे का बस में जाना है. तो क्या है? वी हैव टू हैव दैट पर्टिकुलर ब्रेन. हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचना है. पॉजिटिव अगर नहीं सोचेगा तो हम लोग का दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव में ही जाएगा, है कि नहीं? अगर आप लोग को एक नेगेटिव का बारे में बोला जाए तो नेगेटिव ही आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही आएगा. तो इसीलिए जितना भी सीनियर स्टूडेंट है, स्पेशली मैं सीनियर स्टूडेंट को ही बोलना चाहूंगा, अगर इस तरीका का कोई बुलिंग, कोई रेगिंग या कोई इस तरीका का अगर इंफॉर्मेशन आता है तो हम लोग का डिपार्टमेंट वेरी स्ट्रिक्ट है और हम लोग का डिपार्टमेंट छोड़ने वाला है नहीं. वी विल बी टेकिंग एन एक्शन एंड एज पर एंटी रेगिंग लॉ, योर प्रिंसिपल एंड योर टीचर्स हैज गॉट द एवरी राइट टू एक्सपेल यू फ्रॉम द स्कूल.
they have got every right to expel you from the school, and you may have to go to the other school to pursue your studies. आप लोग को इस स्कूल से एक्सपेल किया जाएगा, घर भेजा जाएगा। अगर उसमें भी डिग्री होता है आपका, अगर डिग्री अप टू व्हाट लेवल ऑफ डिग्री यू आर बुलिंग योर स्टूडेंट, अप टू व्हाट डिग्री ऑफ यू आर रेगिंग योर जूनियर स्टूडेंट, अगर ज्यादा डिग्री हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट में एक लाइन लिख देगा प्रिंसिपल, आपको कोई स्कूल में एडमिशन मिलेगा नहीं। कोई स्कूल में एडमिशन आपको देगा नहीं। तो दैट मच ऑफ पावर योर प्रिंसिपल इज ऑलरेडी हैविंग। सो अपना फ्यूचर को बर्बाद मत करो। अभी आप लोग देखा है मोस्ट प्रोबेबली विथ फ्यू वीक्स का आगे में आप लोग का सामने ही कितना थाउजेंड यंगस्टर्स, थाउजेंड जॉब एक्सपीरियंस जिसको नौकरी चाहिए, वो लोग अभी पुलिस के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो लोग अपना फिजिकल टेस्ट देने जा रहा है। फिजिकल टेस्ट अभी हम लोग का विलम नगर में ही होगा। This year, the Central Recruitment Board has already selected the William Nagar field also to conduct a physical test. फिजिकल टेस्ट जो पुलिस के लिए भर्ती के लिए जो अभी फिजिकल टेस्ट होगा वो विलम नगर में ही होगा। मतलब गवर्नमेंट ने आप लोगों को टूरा जाने के लिए, शिलोंग जाने के लिए मजबूरी नहीं कर रहा है। नौकरी के लिए हमको टूरा जाना है, गोयरागरी जाना है, शिलोंग जाना है, तो यू कैन हैव योर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट इवन इन विलम नगर। तो इस किस्म का फैसिलिटी आप लोग घर में बैठ के ही मिलने वाला है, घर में बैठ के ही मिलने वाला है। तो इफ यू आपको अगर यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, आपने कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, आपका पास अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आप भी कोई जॉब के लिए कोशिश करना चाहता है, अगर आपका पास अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप कभी भी वो जॉब अप्लाई करने ही नहीं सकेगा। तो इसीलिए मैं दरख्वास्त करूंगा या आप लोग को रिक्वेस्ट भी कर रहा है, लिव एज ए ब्रदरहुड। वी हैव टू लिव एज ए ब्रदरहुड एंड प्यार करना सीखो, जूनियर को गाइड करने के लिए सीखो, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। और ये स्कूल लाइफ आप लोग जब स्कूल से पास होके आप लोग चला जाएगा यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में, तब आप लोग मिस करेगा। ये स्कूल का लाइफ का जैसा आप लोग लाइफ मिलेगा नहीं। हम अगर चाहेगा कि हम आपको और स्कूल जाने के दिल है, तो आपका प्रिंसिपल हमको एडमिशन देगा नहीं। आप सर आप तो बुढ़ा हो गया अभी और एडमिशन नहीं होगा, तो आई कैनॉट गो बैक टू माई स्कूल डेज। तो दिस इज योर वेरी what should say, this is one kind of very beautiful phase of your life you are living, because even during our training period, after coming out from our training period of 1 year, we miss our training period even in the police department. जब हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लिया है, तो उसको अभी भी हम लोग मिस करता है। अभी भी हम लोग अपना कलीग के साथ में हम लोग का बीच में जो भी इंसिडेंट हुआ था वो हम लोग अभी याद कर रहे हैं। तो दिस इज द मेमोरेबल डे यू आर लिविंग, मेमोरेबल डे यू आर स्पेंडिंग इन योर लाइफ। सो नंबर 2, एंटी रैगिंग का जो प्रावधान है उसका अंदर आप लोग बचते रहो, अपने आप को प्रिवेंट करो ये सब करने के लिए। और 2 नंबर बात है, अभी जो फिलहाल आजकल चल रहा है जनरली ड्रग्स का बारे में भी वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इफ यू आर इंडल्ज, इवन लास्ट टाइम यू आर हैविंग अवेयरनेस प्रोग्राम, आई थिंक इन अवेयरनेस प्रोग्राम यू हैव बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन। अभी आप लोग देखो, कभी रास्ते में आप लोग बाजार जाता है, कभी कहीं भी बाजार जाता है, तो दारू पी के आदमी सोता हुआ आपको मिलेगा। पुलिस उसको लेके जाके हॉस्पिटल मेडिकल करवा के उसको छोड़ देता है। लेकिन ड्रग्स का केस में ऐसा नहीं है। अगर ड्रग्स का केस में आप लोग को मिला कि यू आर द कंज्यूमर, आप पीने वाला है, तो यू आर इवन इंटाइटल्ड टू गो टू जेल। ये मत सोचो कि मेरा अपना पैसा से मैंने ड्रग्स पिया है। नो, यू हैव टू बी सेफ्ड, योर हेल्थ हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। इसीलिए पीने वाला भी अंदर जाएगा, बिक्री करने वाला भी अंदर जाएगा, और जिसका घर में रख के उसको बिक्री कर रहा है वो भी घर में जाएगा। तो बी केयरफुल इन ऑल दोस थिंग्स। यू हैव टू बिल्ड योर हेल्थ, यू हैव टू बिल्ड योर करियर। तो वी विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड परस्यू योर स्टडीज, एंड वी वांट टू लुक अप एट यू। सो आप लोगों को बधाई देते हुए मैं इतना शॉर्ट स्पीच में एंड कर रहा हूं। थैंक यू। जैसा आपने हमें बताया, हम नवोदय विद्यालय परिवार के रूप में यहाँ रहते हैं, और वैसे ही
प्यार से रहने का प्रयत्न करेंगे। अब मैं प्रिंसिपल सर को निमंत्रण दूंगा कि वो सर को वोट ऑफ थैंक्स दें। रिस्पेक्टेड गेस्ट्स, विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज बहुत अच्छा दिन है कि सर हमारे पास आए हैं और सर ने हमें एंटी रैगिंग के बारे में, एंटी ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, आप लोगों को अवेयर करते रहते हैं। और आज सर ने आकर जो है वो बड़ी डिटेल में और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को मोटिवेट किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सर की बातों को बड़े ध्यान से सुना होगा और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे बच्चों के लिए समय निकाला। और सर, मैं ये इंश्योर करता हूं कि हम लोग एंटी रैगिंग के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम लोग ऐसी कोई भी इवेंट को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं और इमीडिएट रिपोर्टिंग करते हैं। मैं उसी सर का भी बहुत आभारी हूं। इन्होंने पिछले समय में हमारे यहाँ जो एंटी रैगिंग कैंपेन थी उसमें बहुत हेल्प किया है। जो भी रैगिंग केसेस हमारे सामने आए, इनकी सपोर्ट से हमने बहुत अच्छे से उनको हैंडल किया था सर। और कंप्लेंट बॉक्स हमारे पास इंस्टॉल्ड है। कभी भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होने से कोई भी बच्चा उसमें कंप्लेंट डाल सकता है और हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। इसके अलावा सभी हाउस मास्टर्स बच्चों से कांटेक्ट में रहते हैं, जूनियर सीनियर। कोई भी प्रॉब्लम आने से बच्चे हाउस मास्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं। आज ही हमारे स्कूल में एक नए स्टाफ को हमने एंगेज किया है जो वार्डन है, मतलब ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है। वो भी स्पेशली इसी काम के लिए है कि रैगिंग और जो इस तरह की इलीगल चीज़ें हैं वो हॉस्टल में ना हो और बच्चों का और अच्छा ध्यान रखा जा सके। तो हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं सर। आपके सपोर्ट के लिए हम आपके लिए भी बहुत धन्यवादी हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे बच्चों को गाइड किया। धन्यवाद सर।